Good morning, dear students. Our today's topic is it is chapter number 5, Polo, the King of Games, from your textbooks, page number 33, titled Polo, the King of Games. पोलो एक किस्म की गेम है जो घोड़ों पे खेली जाती है। एक हॉकी स्टिक होती है जिसको मैलेट बोलते हैं। ये जो पोलो गेम है, इट इज वन ऑफ द फेमस गेम प्लेड इन द लद्दाख। उसी के बारे में ये कहानी बताई हुई है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैसे आई, कहाँ कहाँ से इसका इसका बैकग्राउंड है, कैसे खेली जाती है। लेट्स हैव अ स्मॉल समरी अबाउट दिस chapter, the king of games. There are so many games played by common people. कह रहे लोगों की तरफ से बहुत सारे गेमें जो है वो खेली जाती हैं। But certain games are played by only a few and in certain areas only. लेकिन कुछ गेम्स कुछ ही लोग खेल पाते, जैसे क्रिकेट सारे खेल पाते हैं, एवरीबॉडी प्लेज क्रिकेट। वॉलीबॉल एवरीबॉडी प्लेज वॉलीबॉल। बट देयर आर सम गेम्स विच आर प्लेड बाय ओनली स्पेशलाइज्ड पीपल। कुछ लोग ही, कुछ खास लोग ही कुछ खास गेमों को खेलते हैं। इन एडिशन these games are played with little variation in rules from one area to another. कुछ गेम्स में कुछ वेरिएशन होती है। there are variations in different games. one such game is polo. उसमें एक गेम का नाम है पोलो, जो कि आम गेम नहीं है। played on horseback as the player strikes the ball with the mallet in his hand. घोड़े पे प्लेयर होता है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है, हॉकी स्टिक जिसका मैलेट, उसी से बॉल को वो स्ट्राइक करता है। His fast and furious, this is the very fast and furious game. घोड़े कितने फास्ट चलते हैं। It is called king of games. क्यों? Why it is called king of? Because these games were played only by kings, not by common people. That is why it is called king of games. And read more about polo from the lesson. Now we will read this chapter from page number 33 thoroughly. The king of games. Let other people play at other things. The king of games is still the game of kings because it is only confined to kings. That is why it is called the king of games. It is only confined to kings. This verse, जो ऊपर वर्स दी हुई है, inscribed on a stone tablet besides the polo ground south of the fabled silk route from China to west, sums up the ancient history of oldest organized sports in the world, with its reputed 2500 years or more of the existence. It has a story of 2500 old history. It came from Silk Route to China. It came from China through Silk Route to Ladakh with the history of 2500 years. 2500 years की इसकी पुरानी हिस्ट्री है। Certainly, polo reflects all the qualities that made by the Mongol horse the greatest nation of the horsemen in the ancient world. ये जो पोलो है, ये पहले मंगोल्स खेला करते थे। मंगोल्स मीनी चाइनीज, जो चाइना में जो रहते थे उनको मंगोल्स कहते थे। उन्हीं की क्वालिटी होती थी ये पोलो पहले। हॉर्समैन, हॉर्समैन मीनी जो घोड़ों पे चलते हैं, जिनको घोड़ी की सवारी आती है। Great skill coupled with a clear eye and stout heart are the prerequisites of polo player. ये जो पोलो प्लेयर होता है, सबसे पहले वो हॉर्समैन होना चाहिए, उसको घोड़ा चलाना चाहिए, आना चाहिए। He should be too fast, too clever. उसका जो हार्ट होता है बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, दिमाग मजबूत होना चाहिए, नजरें बिल्कुल गड्डी होनी चाहिए उस चीज पे। Polo was born in Central Asia. Actually, it originated in Central Asia. Spent its childhood, बचपन इसका कहाँ गुजरा पोलो गेम का? In the Iran. ईरान में इसका बचपन गुजरा। And attained maturity in northern areas. जो northern areas है वहां पर इसकी maturity, वहां पर ये पनप गई है गेम। Now, page number 34.
From the steppes of Central Asia, the game eventually spread in Japan, China. सेंट्रल एशिया से आगे चल के ये गेम जापान पहुंच गई और चाइना, तिब्बत और लास्ट में इंडिया. ओवर द एजेस द अरिस्टोक्रेटिक गेम डेवलप्ड टू प्रमोट इक्वेटिज्म एंड मिलिट्री स्किल्स. इससे मिलिट्री स्किल्स भी पैदा होती है इस गेम को खेलने से. एंड वाज रैंक नेक्स्ट टू बैटल इटसेल्फ. इट वाज एक्चुअली इटसेल्फ बैटल. जो पोलो है ये घोड़ों पे खेली जाती है, मैलेट होता है, ठीक है, ये इंटरने बैटल ही मानी जाती थी. एज अल्टीमेट टेस्ट ऑफ है पावरनेस ऑफ प्रिंसेस. ये टेस्ट करता था जो हॉर्समैन हैं, जो घोड़े चलाते तेज, वो कितना तेज घोड़े चला पाते. वो जिस हिसाब से वो घोड़े तेज चलाएंगे उसी हिसाब से वो मैलेट से बाल को आगे आगे करके गेम को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक्स.